Hello, now it's time to start, but then I think there's echo, so echo needs to be resolved. So it gets resolved now. Chalo, I think we can start now safely. Good morning messages lined up from, some more entries happening. Aryant, Rishabh, Shreyashi, Harshit, Kumar, Aditya, Rishabh, Garv. Good morning. Om Pathak has a question, and that is Om Pathak says about some kind of renaming of Mughal Museum into Chhatrapati Shivaji Museum. These things go on. Rename and all. Renaming and all is old stuff. I mean, I don't know how much fruitful or effective that is. And now there are reverse comments also. Yeah, that is why I don't consider BJP as very good. So now we are talking political. So from physical to political, or from physics to political. Okay, interesting. But there have been people from engineering background who have gone into politics. And I am a resident of Delhi right now. So the chief minister is from IIT Kharagpur. So that's an interesting thing, I mean, definitely. Or just a few years back, I mean, we had a chief minister from IIT Mumbai. And that was whom? Who? Name him. Chief Minister from IIT Mumbai. Name him. देखते हैं जीके कितना है. No, Arvind Kejriwal I already named. वो तो मैंने already नाम ले लिया. मैं कह रहा हूँ Arvind Kejriwal के अलावा. Okay. Aryant is the first one to give the right answer, and that is Parrikar. That's right. He is Manohar Parrikar. He was the chief minister of Goa, then became the defense minister of India, and then became back to chief minister of Goa. I will tell you some incident, very interesting incident that he told regarding his own personal hostel experience. Okay, so let that be today's chit chat. ठीक है ना? तो he said कि जब वो हॉस्टल में बैठा हुआ था तो अपने हॉस्टल रूम में वो बैठा हुआ है और उसका एक फ्रेंड बैठा हुआ. Now he has been until, I mean, up to khar he is no more, but till his last breath, I mean, he was a teetotaler. Teetotaler means no drinking, no wine, no smoking, nothing. Chalo, good. Good or bad, I don't know, but then that was his quality. So what he said was that उसका जो next door roommate थे, वो exactly उल्टा था. अच्छा नहीं sorry. उसका एक फ्रेंड था जो कि टीटॉटलर था. I mean, he was also one, but the incident was his friend. और उसका जो एक और बगल वाले रूम में थे, he was a very this thing. I mean, हॉस्टल में जैसे कई लोग बिगड़ जाते हैं, तो he used to smoke a lot, he used to drink a lot, all those stuff. चलो जो भी है, that was the case. I mean, अब बाई चांस क्या हुआ कि वो जो ड्रिंकर वाला फ्रेंड था या स्मोकिंग वाला फ्रेंड था, वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पूरा लेके बैठा हुआ था और अपना उसके सामने बैठा हुआ था वो टीटॉटलर वाला फ्रेंड. So any two friends are sitting together. One is a teetotaler or another is a smoker. So let's call one of them a smoker and the other is teetotaler, so that you can identify well. अब जब ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे थे और टीटॉटलर वाला अपना बैठा हुआ है, गपशप कर रहे हैं, जो भी है. इन द मीनवाइल डोर में हुआ नॉक. चलो भाई नॉक हो गया. तो नॉक होते ही कैजुअल हॉस्टल में जैसे होता है, ठीक है देखो जरा कौन है. जैसे ही खोला तो देखा कि वो जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाला लड़का था उसका फादर आए हुए उससे मिलने. कई बार होते थे. I mean, अच्छा उस जमाने में फोन भी नहीं होता था, मोबाइल तो नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 70s एंड ऑल, व्हेन ही वाज इन आईआईटी. तो 70s की बात करता, तो मोबाइल फोन भी नहीं था. तो फादर आ गए और जाके सीधे नॉक कर दिए. फादर को तो रोकते भी नहीं, अदरवाइज कोई और अगर आता है तो जनरली हॉस्टल के गेट में रोक देते हैं, फिर उसको बुलाते हैं कि भाई जाओ कोई मिलने आया. फादर को थोड़ी ऐसे करेंगे. फादर को तो भाई ठीक है आप जाओ हॉस्टल में मिलने जाओ. तो स्ट्रेट अवे नॉक्ड हिज सन्स दिस थिंग. वो जाके जो है
टेबल में सिगरेट, एस्ट्रे, ड्रिंक का बॉटल, सॉरी बॉटल प्लस ग्लास एक्सेट्रा लेके बैठे। अब इनके फादर आ चुके, लेकिन वही बात है ना कि आईआईटी का खोपड़ी है। तो आईआईटी का खोपड़ी ने क्या कैसे बचाया, देखो वो जो दूसरा फ्रेंड था वो समझ गया, जो टीटोटल वाला, वो समझ गया कि अब तो ये पिटेगा बॉटल। तो उसने बचाने के लिए क्या किया, उसने सारा बॉटल, एस्ट्रे, आधा सिगरेट का वो जलता हुआ वो सब ग्लास वास सब उठाया और सॉरी अंकल करके वो चला गया दूसरे रूम में, अपने रूम में। तो चलो जो भी है, फादर ने इसको जो भी है पैसे वैसे, मतलब ऐसे तो धूम धड़का हो जाता, फिर उसको पैसे वैसे देने आए थे, तो लाइक पैसे ले लो, ये हॉस्टल में। जाते हुए इसके फादर ने एक एडवाइस दिया, बोला कि बेटे एक एडवाइस मैं देता हूँ, पता है क्या, कि इन जैसे लड़कों के साथ ना मिलना जुलना बंद कर। So now you can imagine how the IIT Khopri not only saved him but actually got the reverse. I mean, so that was a small incident which Parikar had narrated in one of the programs. Maybe some of you had seen it also. वो जो आज तक वाला पे नहीं क्या, वो एक जिसमें कटघरे में क्या प्रोग्राम उसका नाम है, रजत शर्मा वाला, जो भी है उसके प्रोग्राम का नाम, उसी में आए थे एंड ही हैड नैरेटेड इट। तो दैट वाज द आईआईटी इंसिडेंट, ठीक है ना। चलो आई थिंक लेट्स नाउ स्टार्ट। वी वर डिस्कसिंग अबाउट टॉर्क। तो हमने एक बड़ा सिंपल सा सिचुएशन किया था कि अगर एक रॉड को हम रखते हैं दोनों उस पे थ्रेड पे हैंग करके, तो इन दैट केस उस पे यू नो फोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा सो दैट द नेट फोर्स of the wires is balancing the total weight and also the net torque of the system about any point is equal to 0. So that was the simple case, ठीक है ना। तो उसी पे हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कृष्ण अगर इज आस्क्ड कि केजरीवाल कौन से आईआईटी से है। केजरीवाल वाज फ्रॉम यू नो आईआईटी खड़गपुर, ठीक है ना। केजरीवाल जो है आईआईटी खड़गपुर के, उसके ब्रदर मेरे बैचमेट है, तो एक दो बार हमारे हॉस्टल भी आए थे मिलने उसके ब्रदर से। उसके ब्रदर से इनफैक्ट मेरा अभी भी कांटेक्ट है, मनोज केजरीवाल है उसके ब्रदर है, तो ही वाज इन माय दिस थिंग कॉलेज, ठीक है। चलो खैर, सर वो कौन से आईआईटी में थे उनके भैया? हाँ, उनके भैया कौन से आईआईटी में थे केजरीवाल के? केजरीवाल मैं दोनों बोला था ना बैचमेट, तो हमने ऐसे किया था आईआईटी बीएचयू, जिसका अभी नाम है आईआईटी बनारस नाम हुआ, तो पहले उसका नाम था आईआईटी बीएचयू था, ठीक है ना। अब तो नाम बदल गया, ठीक है ना। तो वी वर बैचमेट्स एक्चुअली। तो एनीवे, वन मोर सीरियस क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम ध्रुव गुप्ता एंड दैट इज डेट्स आ गए क्या? डेट्स अभी नहीं आए, तो लाइक आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो मुझे लगता नहीं कि इस वीक हो पाएगा, आज तो ऑलरेडी ट्यूसडे हो गया। मुझे नहीं लगता है कि एक दिन पहले डेट बताएंगे और कल पेपर है, कल मुझे लग रहा है शायद मंडे स्टार्ट होगा, जो मुझे लग रहा है। वर्स्ट केस इज लाइक फ्राइडे अगर हुआ तो, वो भी कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट मुझे जो लगता है, ठीक है ना। आर्यन आज की एक बार वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं। एक बार डाउट कहाँ पे भेजा बेटा तुमने? वो 9555 में, तो मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर में। लेट्स नाउ स्टडी और डिस्कस अबाउट टॉर्क दैट वी वर डिस्कसिंग। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा आज। मेरा क्वेश्चन देखो, कल हमने लोडिंग के ऊपर वो किए थे, ठीक है ना। तो आज फिर से लोडिंग है, और लोडिंग थोड़ा अलग टाइप का है। कैसे लोडिंग है बताता हूँ मैं। देखो ये एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर ये रॉड 4 किलो का है, और यहाँ पे एक 1 kg मास हैंग कर रहा है, ठीक है। ये 1 kg है, ये 4 kg है। So the rod is of 4 kg mass. The rod has a length of let's say 80 centimeter, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल लोडिंग किया गया। ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस डाल देता हूं मैं, है ना, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक वेरिएबल लोडिंग है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट यू एग्जैक्टली मीन बाय वेरिएबल लोडिंग। अभी बताता हूँ। वेरिएबल लोडिंग में क्या होता है कि सपोज जो लोडिंग है उसका जो अमाउंट है वो सपोज एक्स के प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पे जो लोडिंग है ना, तो लोड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 नहीं, सपोज 4x या 40x, ठीक है। 40x where x is the x coordinate, इतना न्यूटन पर मीटर, ये लोडिंग है।
लोडिंग कहां तक है? ये है 20 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर तक लोडिंग है और वेरिएबल लोडिंग है। लोडिंग कैसे है वो दिया हुआ है 40x न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द टेंशन T1 एंड टेंशन T2। ठीक है, तो फाइंड T1 एंड T2। सर ब्लॉक 1 kg का है। हाँ 1 kg, 1 kg, 1 kg। रॉड खुद भी मास वाला है, रॉड का भी मास 4 kg है, रॉड का लेंथ 80 सेंटीमीटर है और यहां से एज यूजुअल 20 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, यानी इसका जो गैप है ये 60 सेंटीमीटर है, ये गैप 60 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर तक लोड है। रॉड का लेंथ 80 सेंटीमीटर है, इधर वाला 20 सेंटीमीटर, 4 kg का रॉड है, 1 kg का मास लटका हुआ है बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द रॉड। तो ये सिस्टम है और इस सिस्टम में तुमको दोनों थ्रेड पे टेंशन निकालना है। ठीक है, गो अहेड। अंश सेज की क्या फर्क पड़ता है एक दिन आगे या पीछे? See, it all depends on how much you are prepared a bit already. कई लोग को लगता नहीं थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम मिलना चाहिए। जैसे अभी अर्नव ने एक मैसेज भेजा है कि 1 हफ्ते का तो गैप होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, बट देन मैंने पहले बोला हुआ था 18, बल्कि अगर पीछे होता है लेट्स से तो यू आर गेटिंग एक्चुअली मोर टाइम। हाँ, द ओनली थिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग इज द डेट शीट कि कौन से दिन क्या है। बट डज इट रियली मेक अ डिफरेंस? फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर पहले दिन केमिस्ट्री और फिर मैथ्स है तो आज क्या तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगा? आई डोंट नो, मे बी डिबेटेबल। सर आज ये लगा होगा सब कुछ, आज ही शुरू करेंगे अगर कल मैच का होगा। अच्छा, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डेट शीट कभी भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, अरियंत ने एक मॉन्की क्वेश्चन पूछा है, मॉन्की। अभी बता। आदित्य माथुर सेज कि अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि अगर 17 को पेपर होता जैसे हमें पहले लग रहा था तो 10th के बाद ही स्टार्ट करना। तो नाउ दैट इट इज नॉट इन 17 कैसे हो सकता है? आज तो आई थिंक 14th या 15th हो गया ऑलरेडी। आज 15th हो गया तो 17 तो हो नहीं सकता है ना। सो देयरफॉर यू कैन स्टार्ट टुडे आल्सो, नो इश्यूज। एक्चुअली ना थोड़ा सा ना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और हॉट्स वो जरूर देख के जा, वो इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, उस बहाने ना थोड़ा सा देखना 2-3 चीजें सीख भी जाओ। कई बार ना कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे कैसे लॉज अप्लाई होता है वो देखो, हर चीज तो क्लास में डिस्कस करने का इतना टाइम होता नहीं। तो कई बार क्वेश्चंस के थ्रू इस बहाने वो एक्सपोजर मिलेगा तो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड बेटर, इसलिए उसका पॉजिटिव है, ऐसा कोई बात नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो टोटल लोड निकाला जाए, क्योंकि ये लोड पर यूनिट लेंथ है 40x। और टोटल लोड क्या होगा? सो टोटल लोड हो गया यहाँ पे ये वाला, तो 0.2, तो इंटीग्रेशन 0 से 0.2, 20 सेंटीमीटर है, ये न्यूटन पर मीटर है। हाँ, अगर न्यूटन पर सेंटीमीटर होता तो फिर लिमिट होता 0 to 20, पर ये न्यूटन पर मीटर है इसलिए 0 से 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर। क्या? 40x dx। क्योंकि लोड अगर मान लो W मानते हो तो W पर लेंथ इज इक्वल टू व्हाटएवर, तो W क्या होगा? दिस इनटू लेंथ, तो लेंथ बोलते क्या? dx, और ये क्या? ये 40x है, ये 40x हो गया। तो therefore the total load due to this है ना, let's call it as W1 या W small w, क्या फर्क पड़ता है, is equal to 40x dx, तो यानी 40 into x square by 2 है ना, तो यानी 20 x square, 40 into x और टोटल लोड हो जाएगा 40 into x square by 2 यानी 20 into x square। ठीक है, तो that is equal to 20 into 0.04, 0.2 का स्क्वायर तो 0.04। ठीक है, यानी आ गया इक्वल टू 10 से 0.4 तो 0.8 kg, 0.8 kg।
सॉरी 0.8 न्यूटन। वैसे मैंने कुछ ज्यादा ही कम दे दिया, बट चलो कोई नहीं, जो दिया उसी को सॉल्व कर। यशु हैज ऑलरेडी गिवन वन आंसर हमें, दैट इज T2 का, ठीक है ना। चल कोई नहीं, अभी देखता हूं। और टॉर्क देख लेते हैं, है ना। तो अगेन ये तो हो गया टोटल लोड, तो यानी T1 प्लस T2 आ गया। सो देयरफॉर T1 प्लस T2 आ गया कितना, नहीं इसका टोटल लोड आ गया 0.8, इधर 40 और इधर 10, तो 40 प्लस 10 50, और इसका 0.8 आया, तो यानी 50.8 इज द टोटल लोड। ठीक है, अभी थोड़ा डेसिमल आ रहा है तो अपना बाद में कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लेंगे, जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो T1 प्लस T2 आ गया 50.8। आई होप दैट्स फाइन। सारा लोड ले लिया ये है कुछ। दूसरा टॉर्क का, तो T1 का तो टॉर्क 0 है, T2 का टॉर्क क्या होगा, T2 इंटू यहां से अगर देखेंगे तो 0.6, तो यानी T2 इंटू 0.6 इज इक्वल, एक तो इस 1 kg का लोड, तो यानी 10 इंटू 0.8, 10 इंटू 0.8 प्लस 40 इंटू 0.4 प्लस 40 इंटू 0.4 प्लस, अब आता है असली पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और वो है वो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट, है ना। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट कैसे करेंगे, आई ओनली गॉट वन टिल नाउ। देव इज आल्सो आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्या स्कूल खुलने का भी कोई नोटिस है क्या? नहीं, एज ऑफ तो नाउ नहीं है। आई डोंट थिंक ये हाफ ईयरली के तक खुलेगा, आई थिंक हाफ ईयरली के बाद ही खुलेगा, अगर खुलेगा तो। सो लेट्स वेट फॉर दैट। चलो एनीवे, तो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, यहाँ पे जो लोड होगा वो होगा 40x इंटू dx किसी भी पॉइंट, और अगर मान लो x वाले डिस्टेंस पे अगर तुम वो सब करते हो टॉर्क, तो इंटू x होगा, तो यानी प्लस इंटीग्रेशन 40x स्क्वायर dx, या इसको इसे लिखो 40x dx लोड इंटू x, दैट इज द टॉर्क, तो वो हो जाएगा 40x स्क्वायर dx। तो सीधा ही लिख दिया मैंने, एज यूजुअल 0 से 0.2, तो T2 into 0.6, so T2 into 0.6 is equal to 10 into 0.8, that is 8, plus 40 into 0.4, that is 16, plus है ना 40 by 3 into x cube, तो यानी 0.2 का whole cube. Now that's pretty small value, so that is equal to 32 plus, so 2 to the 4 to the 8 to for the 32, तो यानी 0.032 by 3, है ना। ये आ रहा है शायद 0.008 32 0.32 0.32 by 3, ठीक है। तो ये आ गया भाई, यानी 96.32 by 3 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। देहम हैज आस्क्ड कि क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड लेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड ही लिया बेटे। ये देखो ये जो रॉड का लोड है ना 4 kg का 40 न्यूटन, तो वो 40 न्यूटन हमने 40 सेंटीमीटर पे लिया, यानी अरे 40x स्क्वायर कैसे आएगा, मतलब 40x स्क्वायर dx? नहीं, वो एक्चुअली क्या, देखो ये तो लोड हो गया 40x dx, और ये कितना दूर पे है x डिस्टेंस पे, मतलब समझ लो इस तरीके से, ये जो ड्राइंग बना रहा हूं मैं, अगर मैं समझ गया सर, है ना, तो 40x और dx हो गया लोड इनटू x डिस्टेंस, तो टॉर्क। तो या एक बार बस कैलकुलेशन चेक करते रहना, क्योंकि एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो सारे गड़बड़ हो जाएगा। यानी T2 into 0.6 is equal to 96.3, 24 होगा, हाँ बेटे, वो 32 की जगह 24, that's ठीक है ना, तो 16 plus 8 है, that's right, यानी 72.32 by 3, तो यानी T2 हो गया इक्वल टू 72.32 by 3 into 0.6। बाकी कैलकुलेशंस यशु तुम भी एक बार चेक कर लो, मेरा भी, है ना, कैलकुलेशन कर ही लेंगे, चलो कर ही देते। एक्चुअली क्वेश्चन बनाने का ये एक दिक्कत हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है। 40.18 कुछ आ रहा है, 40.18,
दैट इज इक्वल टू अराउंड 40.18। तो अगर T2 40.18 आता है ठीक है ना, ये 40.18 आ गया, तो आई थिंक T1 आ गया फिर, तो therefore T1 is equal to 50.8 minus 40.1, that's it, यानी 9 पॉइंट कुछ आएगा जो भी आएगा, है ना। एक बार कैलकुलेशन में दोबारा चेक कर लो इन केस कुछ दिक्कत है तो। है ना, चलो ठीक ही लग रहा है। 0.8 10 10 ये दो वैल्यू, ठीक है, जस्ट चेक इट वंस। हाँ ठीक है, वक्त पे मैंने देख लिया, वो तुमने शायद पॉइंट आउट किया 24 वाला, और T2 सोम ने यही दिया 40.17, वही 40.1718 जो भी है, ठीक है, दैट वाज द कैलकुलेशन में। आई होप यू गॉट इट नाउ, आई होप के समझ में आ गया होगा। चलो अब जो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इसके ऊपर थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट इज लाइक दिस कि सपोज ये फोर्स ऐसी मैं एक और दे देता हूं, and that is, suppose the force is force per unit length, ठीक है ना, so force per unit length is suppose given by like 12 x cube, ठीक है, 12 x cube सपोज ये गिवन है, तो मैं टोटल टॉर्क निकालना चाहता हूं अबाउट पॉइंट O, फाइन, तो फाइंड आउट टाउ टोटल अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू दिस। आज मैं टॉर्क के बेसिस पे और फोर्स के बेसिस पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यू माइट से ये क्या चीज आ गया नया, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ना देखो, जब हम क्लास 10th में 5-6 रेजिस्टर सीरीज पैरेलल इधर उधर खिचड़ी पका के जो है सॉल्व करते थे, तो हम लोग लास्ट में कंसेप्ट निकालते थे दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर डायरेक्ट सीरीज या डायरेक्ट पैरेलल में हो तब तो एक स्टेप में फॉर्मूला से आ जाएगा, और कई बार मिक्स होता था, इधर से उधर सीरीज है, फिर वो किसी और के साथ पैरेलल है, फिर वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो भी है हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिडक्शन करते करते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक पहुंचते थे, और लास्ट में बोलते थे भाई इन सबको हटाओ, अगर तुम सर्किट के बराबरी पे एक नया सर्किट बनाना चाहते हो जो कि इक्विवेलेंट होगा, तो उस आर इक्विवेलेंट को एक अकेला डाल दो तो हमारा काम हो जाएगा। चलो, दैट वाज अबाउट इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो ये फोर्स में कैसे लगा रहा हूँ, तो फोर्स यहाँ पे भी लगा रहा हूँ थोड़ा कम, थोड़ा और ज्यादा फोर्स इधर लगा रहा हूँ, थोड़ा और ज्यादा फोर्स इधर लगा रहा हूँ, थोड़ा और ज्यादा फोर्स इधर लगा रहा हूँ, फॉलोइंग अ फंक्शन विच इज लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। या एक काम करो, पहले ना इससे इजी क्वेश्चन करो, इसको थोड़ा देर रोको, मैं इससे एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर इस पे आएंगे, एकदम से इस पे नहीं जाते। सपोज आई से दैट दिस इज अ लाइन और ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे एक फोर्स रखा है मैंने 10 न्यूटन, यहाँ पे एक फोर्स रखा है लेट्स से 30 न्यूटन, और यहाँ पे एक फोर्स है लेट्स से सपोज 10 न्यूटन या 20 न्यूटन, ठीक है। ये सपोज है 2 मीटर, ये सपोज है 1 मीटर, और ये सपोज है 1 मीटर, ठीक है। गैप समझ में आएगा ना, 2 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है। अब सुनो, सपोज मैं कहता हूं कि क्या कर रहे हो इतने सारे फोर्सेस लगा के, एक सिंगल फोर्स लगाओ बस, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन मैं 2 महीने पहले पूछा होता तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है सिंगल फोर्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिंगल फोर्स कितना होगा, नहीं इक्वल टू द रिजल्ट है। अगर मान लो 3-4 फोर्स इकट्ठे नहीं लगाना चाहते हो और एक अकेले फोर्स से वही चीज चाहते हो, तो ठीक है रिजल्टेंट फोर्स लगा दो,
रिजल्टेंट कितना होगा 10 + 30 ऊपर की तरफ 20 नीचे, यानी नेट फोर्स क्या होगा 20 न्यूटन ऊपर। तो दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। कितना अकेले एक सिंगल फोर्स लगाओगे जिससे जिसका कि सेम इफेक्ट होगा 20 न्यूटन ऊपर। बट अब एक प्रॉब्लम आ गया, क्या कि 20 न्यूटन कहां लगाया जाए, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, सो दैट इस सिस्टम के ऊपर उसका सेम इफेक्ट हो जाए, है ना। दैट इज द क्वेश्चन। सो देयरफॉर अगर मैं पूछूंगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, इन दैट केस क्या होगा अबाउट द ओरिजिन, तो क्या करेंगे ना। इन दैट केस द कंसेप्ट इज दैट कि सपोज मैं रिजल्टेंट फोर्स को किसी एक पॉइंट पे लगाओ, सो दैट जितना टॉर्क ये लोग मिला जुला के बनाता है उतना ही, अगर रिजल्टेंट फोर्स अकेला उतना ही टॉर्क बनाता है तो उसको फिर जहां मर्जी नहीं रख सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास कराना पड़ेगा, एंड दैट इज दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो एक चीज तो मुझे पता चल गया इसको देख के, एंड दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स इज 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं वो रिजल्टेंट फोर्स इधर ही कहीं ड्रॉ कर देता हूं, है ना। तो लेट मी ड्रॉ दैट रिजल्टेंट फोर्स एट सम पॉइंट, लेट्स से हियर, ये है वो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और मान लो इसका डिस्टेंस हो गया x, तो ये x हो जाएगा। नाउ दिस x विल रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, यानी कितना लगाऊंगा 20 न्यूटन, ध्यान रखना। तो देखते हैं कितना आता है। तो इस पॉइंट का अबाउट अगर मैं इस 10 न्यूटन का टॉर्क निकालता हूं तो क्या आएगा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 2 ये वाला, फिर ये क्लॉकवाइज है तो 20 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 4, ये हो गया नेट का। और वो अकेले 20 न्यूटन से बनना चाहिए, तो 20 न्यूटन कितना हो गया इंटू एक्स, तो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, यानी 20x इज इक्वल टू 20 माइनस 60 प्लस 120, ठीक है। तो 140 माइनस 60 इज इक्वल टू 80, यानी x इक्वल टू 4 मीटर। तो यानी इस बार लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा ना, वहीं पे होगा जहां पे 20 न्यूटन फोर्स लगा है। देखो ये तो खैर एक कोइंसिडेंस है, कल को अगर हिसाब बदलोगे तो जरूरी नहीं कि किसी एक फोर्स के अलोंग होता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है फोर्स कितना दूर है और कितना अमाउंट है। तो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस द लाइन ऑफ फोर्स एक्शन ऑफ फोर्स इज व्हाट ना, x इक्वल टू 4 मीटर, यानी ये सारा रिजल्टेंट फोर्स एक पॉइंट पे लगाओ। 20 पे कैसे होगा? 20 पे तो 3 है, तो 30 पे होगा। हाँ सॉरी हाँ, यानी 30, सॉरी हाँ 30, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। हाँ, यानी 30 वाला जो फोर्स है वहीं पे मुझे अकेला फोर्स लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन का, तो दैट के सेम इफेक्ट ऑफ टॉर्क होगा जितना कि इस पूरे सिस्टम की वजह से हो रहा है। So therefore I will say that the line of action of force is not as I have shown, it will be somewhere here, ठीक है। तो ये हो गया 2-3 फोर्स के लिए। अब मैंने यही क्वेश्चन पूछा है इस फोर्स के लिए, तो फटाफट इसको सॉल्व करो, जल्दी करो। I hope you got the point now, ठीक है। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया 4 मीटर वाला, अरियंत दे हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट करके, ठीक है वही आगे। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 20 बोल दिया ना, ठीक 30, ठीक। अंश अग्रवाल has asked कि in this case what is the direction। देखो क्योंकि एक ही फोर्स है या एक ही सेट ऑफ फोर्स है, इसलिए डायरेक्शन उतना मैटर नहीं करेगा। हाँ अगर 2-3 फोर्स होता है, एक और देता है इधर, एक और देता है इधर, तो इन दैट केस बताना पड़ेगा कि फोर्स ऐसे लगा रहा है या ऐसे लगा, देन इट वुड बी नीडेड। बट यहाँ तो एक ही फोर्स है इसलिए जरूरत नहीं, ठीक है, इसलिए इस केस में जरूरत नहीं। I hope I can rub it off now। लेकिन मैं फिर से एक बार चीज कहना चाहूंगा इस दैट ये जो 4 मीटर आया था दैट वाज बाय चांस द सेम एज 30 न्यूटन वाला फोर्स के लोकेशन, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, कल को डेसिमल में फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकता है, तो देयर इज नो रूल एज सच, इट हैज टू बी एट सम पॉइंट। ओके, अंश हैज ऑलरेडी गिवन आंसर, यशु हैज आल्सो गिवन आंसर, यशु हैज गिवन द आंसर एज 4l/5, अंश हैज गिवन 144l to the power 7/7, कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है। Sania, Rishabh, Yashu, everybody is now giving the answers 4l/5 only.
एंड इट सीम्स टू बी करेक्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन का पैटर्न देख के यही लगा। ठीक है, 4l/5 ही होगा, ठीक है ना, 4l/5 ही होगा। चलो ठीक है, आई थिंक द सेम कंसेप्ट, एंड दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x, if I let's say take a very small section of dx, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो है 12x³, तो वो dx लेंथ पे फोर्स क्या आएगा, 12x³ dx, और उसका टॉर्क। तो चलो एक काम करता हूं, पहले नेट फोर्स निकालते हैं, दैट इज 0 to L, so that is equal to 12x4/4, then you get 3x4 0 to L यानी 3L4, ठीक है, और टाउ नेट इज इक्वल टू 12x³ dx into x 0 to L, तो 12x4 हो जाएगा, तो by 5 यानी 12/5 x5 0 to L, so that is equal to 12/5 L5। अब मैं नेट फोर्स को किसी एक जगह पे लगाना चाहता हूं, तो लेट्स से x डिस्टेंस, तो इन दैट केस क्या होगा, 3l4 into x is equal to 12/5 L5, यानी x कितना हो गया, 4/5, बिल्कुल सही, ठीक है। सो देयरफॉर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट, 4l/5। अच्छा, मैंने अभी एक कंसेप्ट जनरेट कर दिया, या एक सिचुएशन में जनरेट कर दिया, अब तुम जितने मर्जी सिचुएशन में लगाओ, है ना, तो नाउ यू कैन अप्लाई इट फॉर एनी नंबर ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, ठीक है। मोर आंसर्स हैव कम अप, गर्व, ऋषभ, सानिया, अंश, सोम, नहीं अंश का थोड़ा सा मिस्टेक था पहले, तो आई थिंक कुछ और सोच के किए होंगे, तो चलो कोई नहीं, अब तो आई थिंक लिंक अप हो गया होगा एंड मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। चलो, नाउ लेट्स these are the theoretical concepts that were required, I mean, now let's go to practical situations where we apply the idea of torque, ठीक है। Let's start with the discussion of the situation of a ladder. Ladder situation actually clears to a great extent the basic idea of torque or the requirement of torque. There are more situations which we'll discuss, but let's start with ladder today. तो situation ये है कि suppose ये एक wall है and the wall is frictionless. एक ladder रखा है मैंने length L का, ठीक है, थीटा एंगल। हाँ जी सर, हमने जो अभी टॉर्क नेट निकाला है सर, उसमें हमने एफ नेट डीएक्स क्यों नहीं किया? ये एफ नेट डीएक्स क्यों करेंगे, समझ लो कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हर फोर्स जो है एक एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो टोटल फोर्स के लिए उस जगह का फोर्स लेंगे ना, या उस जगह तक के फोर्स लेंगे। अगर उस जगह तक के फोर्स लेके टॉर्क निकालते हो, तो चलो मैं अगर एक सेकंड के लिए एक्सेप्ट कर भी लूं, तो जब तुम नेक्स्ट फोर्स के बारी आएंगे टॉर्क कैलकुलेशन के, तो तुम फिर 0 से लेके वहां तक का निकालोगे, फिर तो एक ही फोर्स के टॉर्क बार बार ऐड होता जाएगा, तो रिजल्टेंट उस समय उस वहां तक का क्यों निकालेंगे रिजल्ट, मैं वहां के फोर्स इनटू वहां के डिस्टेंस का टॉर्क निकालूंगा, तो उससे क्या होगा, छोटा सा अमाउंट ऑफ टॉर्क आएगा ड्यू टू दैट स्मॉल फोर्स। ऐसे हर छोटे छोटे फोर्सेस के इंडिविजुअल टॉर्क्स निकालूंगा, जो कि ये इनटू ये हो गया इंडिविजुअल फोर्स इनटू टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उससे उस पर्टिकुलर छोटे से फोर्स का टॉर्क निकला। अब मैं टॉर्क को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल टॉर्क निकलेगा, ये जी। और जहां तक टोटल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो तो लाइन ऑफ एक्शन वाला ही कंसेप्ट हुआ, तो लाइन ऑफ एक्शन लास्ट में किया ना, ये देखो टोटल फोर्स, ये देखो 3l4 है, तो टोटल फोर्स इनटू सम डिस्टेंस x, ये मुझे नहीं मालूम है कहां पे, तो वो x निकल गया 4l/5, यही तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसके, है ना, दैट्स द पॉइंट। चलो, तो आई होप दैट्स क्लियर हमें। तो लैडर पे आ जाते हैं। लैडर जो है ना फ्रिक्शनलेस वॉल पे है, तो क्या ये लैडर टिकेगा? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। फ्रिक्शनलेस वॉल पे कैसे लैडर पर टिका होगा, है ना, तो क्या होगा ना, ये लैडर को जैसे ऐसे रखोगे तो ये सारे जो है स्लिप करके नीचे आता है, so there is nothing to discuss in this, ठीक है। So let's now have friction on the wall, तो यानी यहाँ पे म्यू फ्रिक्शन है, लेकिन फ्लोर पे नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 0 है। वॉल पे फ्रिक्शन है, लेकिन वॉल पे फ्रिक्शन म्यू है और फ्लोर पे 0 है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम म्यू
minimum mu required to stop slipping. कि स्लिपिंग ना हो उसके लिए मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड क्या होगा? मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड क्या होगा? अच्छा हाँ, एक अरिहंत वाला क्वेश्चन भी रह गया अभी देखता हूँ, फ्लो में ना याद ही नहीं रहता. Obviously, the question will start with a free body diagram. So I think I'm sure you must have already started drawing the free body diagram. तो मैं अब ये क्वेश्चन पीछे वाले का मिटाता हूँ. तो ये आ गया. Okay, let me now start drawing the free body diagram. इसका आंसर है कि कुछ minimum mu required to stop slipping. Okay, Ansh has given an answer. I don't want to read it out right now, क्योंकि उससे ना थोड़ा hint मिल जाएगा बाकियों को. चलो ठीक है, एक ही आंसर है. चलो, let me start now. Let me draw the free body diagram first. कलर रेड कलर के मार्कर्स थे. चलो एनीवे, तो ब्लू से करते हैं. हाँ, तो यानी फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो ये नॉर्मल एक्शन आएगा, ठीक है. एक यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगा, एक मिड पॉइंट पे इसका वेट आएगा, ठीक है. एंड इफ रिक्वायर्ड फिर देखो, अगर ये स्लिप करता है तो ये पॉइंट नीचे आएगा, ये पॉइंट लेफ्ट पे जाएगा. तो यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, पर यहाँ पे फ्रिक्शन आ सकता है ऊपर की तरफ. ये हो गया एफ. ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम. अभी कौन सा कितना होगा एंड ऑल दोस थिंग्स अभी तो बात की बात है. पहली बात तो इसमें अगर एक्स के अलोंग देखोगे तो देयर इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स. क्यों? तो देखो ना, एक्स के अलोंग एक नॉर्मल एक्शन इधर से आएगा, वो तो आना ही है, बिकॉज इट इज प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल. तो वॉल को प्रेस कर रहा है ये स्टेयरकेस लैडर, तो देयरफॉर एक नॉर्मल एक्शन तो वहां से मिलेगा, और यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं सपोर्ट करने के लिए. देयरफॉर इस केस में इट इज नॉट पॉसिबल टू बैलेंस दिस. यानी ये तो स्लिप करेगा ही करेगा, ये स्लिप करेगा ही करेगा. हाउ मच एवर फ्रिक्शन यू माइट पुट, स्लिप तो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए स्लिप करेगा. फाइन, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. यानी Arihant has given answer not possible.
अंश has given the answer that is it will always slip. बिल्कुल सही है, और मैंने भी यही एनालाइज करके समझाया कि क्यों ऐसे होगा, ठीक है ना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन 1, वॉल विथ म्यू फ्लोर 0। क्वेश्चन 2, वॉल में नो फ्रिक्शन, फ्लोर पे म्यू। तो अब निकालो फाइंड द मिनिमम वन। यानी पहले का आंसर आ चुका है, तो पहले वाले का आंसर है नॉट पॉसिबल। सेकंड का आंसर, ठीक है, सेकंड का आंसर क्या है कि कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए मिनिमम फ्लोर पे। तो यानी अब फ्लोर का नॉन जीरो हो गया, तो यानी इसका म्यू है और इसका म्यू हो गया 0। इसलिए ऑब्वियसली फ्री बॉडी डायग्राम भी बदल जाएगा। अब क्या होगा ना, ये जो फ्रिक्शन मैंने ड्रॉ किया ये अब हट जाएगा, ठीक है, ये अब हट गया। तो इसको मैं एक काम करता हूं, अब मैं लेबलिंग कर देता हूं NX, सॉरी NY, और ये हो गया NX, ठीक है। So this is a case of basically a ladder. We are continuing. What is the minimum friction required in case of this situation where the ladder has to be kept at rest? तो अब क्या होगा ना, एक नया फोर्स आ जाएगा and that is friction here. और जब about to slip हो जाएगा तो मैं इस फ्रिक्शन को, ये फिलहाल F है, क्योंकि हर सिचुएशन में तो फ्रिक्शन होगा नहीं ना, सॉरी हर सिचुएशन में तो स्लिप नहीं होगा ना, कुछ सिचुएशन में विदाउट स्लिपिंग भी होगा। तो इन दैट केस क्या होगा, वहां पे कुछ एक वैल्यू का स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो मैंने F रखा। हाँ, अगर मान लो जस्ट रोकना है, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग वाला केस होता है, क्योंकि मिनिमम म्यू पूछा है, यानी अगर बहुत कम म्यू रख दोगे तो क्या फिर भी स्लिप कर जाएगा। यानी मिनिमम म्यू का मतलब क्या हुआ कि एट दैट मोमेंट एट दिस एंगल द फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू व्हाट, लिमिटिंग वैल्यू। तो मिनिमम म्यू के लिए क्या हो गया, दिस शुड बिकम लिमिटिंग, तो दिस शुड नाउ बिकम इक्वल टू म्यू टाइम्स NY। गो अहेड। Okay, answer आ चुका है। Ansh and Yashu has given the answer already, and that is cot theta upon 2, cot theta by 2. So let me also now add to it. पहली बात तो वर्टिकल में देखो, इस बार यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो वर्टिकल में mg है और ny है, ठीक है ना, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कहानी अलग है, बट क्योंकि बैलेंस्ड है, therefore mg has to be equal to ny. So ny is equal to mg, ठीक है। और this one, that is mu ny, has to be equal to what, nx, है ना। So mu ny has to be equal to nx। और एक काम करें, और एक है कि टॉर्क का इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। तो टॉर्क का इक्वेशन क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तो लेट्स राइट टॉर्क इक्वेशन अबाउट दिस पॉइंट। उससे क्या होगा ना, ये जो ny और mu ny है, इन दोनों का टॉर्क खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो क्या होगा ना, mg इंटू ये L/2 है और ये थीटा है, तो cos थीटा, यानी इसका जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, तो टाउ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टाउ एंटी क्लॉकवाइज। ये सिचुएशन है। टाउ क्लॉकवाइज क्या होगा, mg का इस पॉइंट के अबाउट। आई एम टेकिंग टॉर्क अबाउट दिस इक्वेशन, क्या करना ये वाला एक्सिस। तो mg इंटू L/2 cos थीटा, mg इंटू L/2 cos थीटा इज द क्लॉकवाइज टर्म। और इस पॉइंट के अबाउट ये वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कितना, nx इंटू L sin थीटा इज इक्वल टू nx इंटू L sin थीटा, ठीक है। और nx क्या है, म्यू ny, तो इज इक्वल टू म्यू ny इंटू L sin थीटा। और ny है mg, यानी अभी आ गया mg L/2 cos थीटा इज इक्वल टू म्यू ny, और ny है mg इंटू L sin थीटा। तो mg तो सब कैंसिल हो जाएगा, L तो सब कैंसिल हो जाएगा, म्यू क्या होगा ना, cot थीटा बाय 2। सो देयरफॉर अब आ गया म्यू इज इक्वल टू cot थीटा बाय 2, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट।
नाउ कम्स द थर्ड केस, और ये आंसर cot थीटा बाय 2 आप कई लोगों ने दे दिया। अंश से लेके यशु, ऋषभ, देव, आदित्य, हाँ आदित्य, माथुर, श्रेयसी, हर्षित, सबने अब दिया। चलो ठीक है, लास्ट में दोनों में ही म्यू म्यू है। अब कितना म्यू चाहिए मिनिमम, सो दैट the ladder does not slip. The question is the same, find mu minimum required to stop slipping. यही असली क्वेश्चन है, बाकी दो तो जस्ट बिल्डअप था, है ना, यही असली क्वेश्चन है। अब मैं अगर इसको म्यू और म्यू डैश कर दूंगा तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, so that's how it would be, ठीक है। यस अरियंत, इक्वल कोफिशिएंट, इक्वल दिया, यानी ये भी म्यू है, ये भी म्यू, इक्वल लेके कर लेते हैं। व्हाट्स द I hope you got it, so I can rub it off. ठीक, इक्वेशन तो सारे अब नए हो जाएंगे, है ना। So let me also start now. इस बार क्या होगा ना, एक और फोर्स भी आ जाएगा, वो है फ्रिक्शन ऑन द वॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इंटू एनएक्स, सॉरी एनएक्स। एक और फोर्स भी आ गया, यानी इस बार बैलेंसिंग थोड़ा सा पिछले बार से हल्का सा लंबा होगा। अगर मैं एक्स का लिखता हूं, ये तो पिछले बार एकदम फर्स्ट क्वेश्चन का था, तो खत्म हो गया। अगर मैं एक्स का इक्वेशन लिखता हूं तो हो जाएगा, दो ही फोर्स है, म्यू एन वाई और इधर एन एक्स। तो एन एक्स इज इक्वल टू म्यू एन वाई, है ना, एन एक्स इज इक्वल टू म्यू एन वाई। एक्स के अलॉन्ग बैलेंस्ड, वाई के अलॉन्ग, तो वाई वाला इक्वेशन हो जाएगा एन वाई प्लस म्यू एन एक्स, है ना, एन वाई प्लस म्यू एन एक्स, क्योंकि ऊपर जाएगा, इज बीइंग बैलेंस्ड बाय एम जी, नीचे की तरफ। तो मैं एक काम करता हूँ, एन वाई के जगह या एन एक्स के जगह पुट करता हूँ म्यू एन वाई, यानी एन वाई प्लस म्यू इंटू एन एक्स इज म्यू एन वाई, म्यू इंटू म्यू एन वाई इज इक्वल टू एम जी। इससे क्या हुआ, एन वाई आ एम जी बाई 1 plus mu square, and therefore nx is equal to what, mu ny, है ना। Dave has given an answer that is sec phi minus sec theta minus tan theta। चलो कोई नहीं, देखता हूँ, ठीक है। तो ny is equal to mg by 1 plus mu square, nx is equal to mu ny यानी mu mg by 1 plus mu square। अब हम लिखेंगे टॉर्क का इक्वेशन। तो टॉर्क का इक्वेशन भी आई थिंक इसी पॉइंट का वर्ड लिखते हैं, है ना, आई थिंक दैट इज ओके। तो mg इनटू क्लॉकवाइज निकालता हूं पहले, तो ये क्लॉकवाइज है mg वाला, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और म्यू nx का जो टॉर्क है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा अलग। तो mg का क्या होगा, मैं टॉर्क का इक्वेशन है, तो mg इनटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू nx इनटू L sin थीटा। तो nx तो ये है, nx इनटू L sin थीटा प्लस म्यू nx इनटू L cos थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, L cos थीटा, तो इनटू L cos थीटा। आई थिंक L तो चलो खत्म हो रहा है, ये mg भी खत्म होगा, बस एक लाइन और लिखने दो, mg L/2 cos थीटा is equal to nx यानी mu mg by 1 plus mu square
into L sin theta plus mu into nx, ठीक है, mu into nx यानी mu square mg by 1 plus mu square into L cos theta. तो I think mgl तो सब में कैंसिल हो जाएगा, है ना, mgl कैंसिल हो रहा है तो mgl दैट्स इट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा cos theta by 2 is equal to mu sin theta by 1 plus mu square cos theta by 1 plus mu square, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं 1 plus mu square से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या 2 into 1 plus mu square से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 2 into, ये तो 2 हट जाएगा, 1 plus mu square into cos theta equal to mu sin theta plus mu square cos theta, ये ट्वाइस हुआ, ये भी ट्वाइस, ठीक है। अब इसका इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आई थिंक वी हैव टू गो देयर। तो म्यू स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं, यानी म्यू स्क्वायर इनटू cos थीटा, अच्छा ये म्यू स्क्वायर cos थीटा हो गया, 2 म्यू स्क्वायर cos थीटा, इधर जाऊंगा तो म्यू स्क्वायर cos थीटा, तो जरूरत नहीं पड़ रहा, म्यू स्क्वायर cos थीटा प्लस म्यू तो एक ही है ना, 2 म्यू sin थीटा प्लस 2 म्यू sin थीटा, ठीक है, और क्या cos थीटा बस दैट्स इट, माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, यानी अब आ रहा है therefore mu is equal to सबके पास ये आंसर आ रहा है, देखो mu is equal to under root of minus of b, यानी minus of 2 sin theta plus minus under root of b square minus 4ac, यानी 4 sin square theta minus 4ac, b square minus, ये तो ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए प्लस 4ac, 4 cos square theta, है ना, by 2a, यानी 2 cos theta, ऐसे कुछ आ रहा है, चेक करो जरा, b square minus 4a c तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4, यानी इक्वल टू 2 into माइनस ऑफ, ये आ गया 2 प्लस माइनस, तो माइनस तो लेंगे नहीं, 2 minus 2 sin theta by 2 cos theta, या तो 2 तो चलो कैंसिल हो जाएगा, 1 minus sin theta by cos theta, ऐसे कुछ आ, वो चेक कर लो मेरा भी, ठीक है ना, वो चेक करो। अच्छा सबका आ रहा है sec minus tan, sec theta minus tan theta, सबका ये है, हाँ वही सबका ये है, ठीक, यानी sec theta minus tan, yes. So therefore the minimum coefficient of friction required, the minimum coefficient of friction required in this case will be equal to what, a sec theta minus tan theta, ठीक है, got it? चलो, so that was about ladder example, I mean, we'll take up more examples. In the meanwhile, Aryantra एक question भेजे थे, एक बार just उसको briefly discuss कर देते हैं. What he has sent is that, suppose एक balloon है, और उस पे एक मंकी हैंग कर रहा है, something like this. सर किससे हैंग कर रहा है? एक थ्रेड है, एक बैलून है, एयर बैलून नहीं होता जो, है ना, तो हैंग कर रहा, और ये समवेयर स्टेबल, लाइक फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग इन एयर, ठीक है, so this is एयर बैलून, मे बी कुछ लाइटर गैस भरा हुआ है, हीलियम, हाइड्रोजन, जो भी है, इसका हाइड्रोजन तो रिस्की है, मे बी हीलियम, ठीक है। तो लेट मी नाउ लुक एट द क्वेश्चन।
दोनों के मासेस भी दिए हुए, टोटल मास इसका कैपिटल एम है और इसका स्मॉल एम है। तो बोल रहे हैं कि कुछ थ्रेड का लेंथ एल है मान लो, ठीक है ना, थ्रेड का लेंथ है सपोज एल, तो दिस इज एल। तो बोल रहे हैं कि ये मंकी जो है ना, इस थ्रेड से क्लाइम करके पूरा यहां तक चला जाता है, ठीक है, ये मंकी थ्रेड पे क्लाइम करके यहाँ पे चला जाता है। तो क्वेश्चन इज कि कैपिटल एम कितना डिसेंड करेंगे, तो हाउ मच डज द balloon descend, how much does the balloon descend? कंडीशन क्या है, ये जो मंकी है ये पूरा थ्रेड को क्लाइम करके यहां तक चला जाता है और इसका लेंथ एल दे रहा है, ये लेंथ एल दे रहा है। तो बोल रहा है कि ये, अच्छा ये पूरा सिस्टम बाय द वे हवा में फ्लोटिंग, ये पूरा सिस्टम हवा में फ्लोटिंग है किसी एक जगह पे, और मंकी जो है क्लाइम करके, ठीक है ना, थ्रेड से यहां तक पहुंच जाता है। तो बैलून कितना नीचे आएगा, ठीक है। आई ऑलरेडी गॉट वन आंसर, आई मीन इमीडिएटली ऑलमोस्ट। I got an answer almost immediately, ठीक है ना। अच्छा, I hope I can rub this off now. देखो ये भी सेंटर मास वाला कंसेप्ट है और इसलिए देखो फटाफट आंसर आ रहा है। जसराज ने आंसर दे दिए, पिछले क्वेश्चन का भी आंसर कई लोगों ने दिए थे, वो सेक थीटा माइनस tan थीटा वाला। पिछले बार आंसर देने वाले थे देव, आदित्य, माथुर, देहम, ऋषभ, हर्षित, सोम, देहम सबने दिया, अरियंत, जसराज। अच्छा जसराज ने इसका आंसर दिया, कई लोगों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। Jasraj has given small ml by capital M plus M, small ml, सबने आंसर एक ही दिया, सबने आंसर एक ही दिया, and that is small ml by small m plus m. अच्छा, let's also look at the other aspect, and that is ये capital ml तो नहीं होगा बाई चांस, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा, एंड दैट इज एक शॉर्टकट टाइप का ही है, समझ लो कि जैसे कई बार ना देखना इस तरीके से क्वेश्चन और भी मिलेंगे तुमको, कि जैसे बोट वाले टाइप के क्वेश्चंस, बोट वाले क्वेश्चन कि बोट के यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, फिर बाद में इंटरचेंज कर जाता है, या कुछ ये यहाँ पे आ जाता है और ये कुछ यहाँ पे आ जाता है, समझ दैट। तो इन द मीनवाइल क्या होता है, बोट का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट पता है क्या है, कि यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम फिक्स कर, ठीक है, और जो जितना मूव कर रहा है उसको नेगेटिव कर लो, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदा इधर जाएगा तो बोट उधर जाएगा। तो बोट का मूवमेंट क्या होता है, बोट मूवमेंट will be equal to what? Now all the mass moments का नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक बंदा इधर जाएगा तो बोट उधर जाएगा, और अगर बंदा उधर जाएगा तो बोट इधर आएंगे। तो ये देखो ये क्वेश्चन सिमिलर है, बोट में भी एक बंदा इधर उधर करता है तो बोट शिफ्ट होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये उधर जाता है तो कैपिटल एम को बोट समझ, तो ये ऊपर नीचे करता है तो वो है ना, वो भी ऊपर नीचे होता है। तो क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ मास मोमेंट का सिग्मा, माइनस ऑफ सिग्मा मास मोमेंट्स अपॉन टोटल मास। जैसे अभी इस बोर्ड के क्वेश्चन में मैं बता देता हूं, जैसे सपोज, तो इसका आंसर तो आ गया, माइनस ऑफ सिग्मा मास मोमेंट, तो इसका मास मोमेंट क्या होगा ना, m into l, तो m into l is the mass moment of this relative to the board, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू बोट, ये भी लिख लो साथ। तो ये भी अगर इसको बोट मानते हो तो विथ रेस्पेक्ट टू बोट क्या होगा, स्मॉल m into कैपिटल L, ऊपर की तरफ मास मोमेंट इसका। लेकिन ये क्या करेगा ना, उल्टा, माइनस यानी नीचे, तो ये नीचे आएंगे, कितना नीचे आएंगे, स्मॉल m into L बाय टोटल मास, टोटल मास क्या है, स्मॉल m प्लस कैपिटल। ये तुम बोट में लगाओ, जैसे मैं अभी एक बोट का भी क्वेश्चन दे देता हूं इसी बहाने। जैसे एक बोट है, ठीक है, बोट का मास मान लो 400 kg है, एक बंदा यहाँ पे है, वो मान लो है सपोज 40 kg,
और ये वाला बंदा मान लो है 80 kg. Suppose the length of the boat is equal to suppose 10 मीटर. क्वेश्चन सुनो. If they interchange, if these two persons interchange, find shift of boat. सीधे आंसर निकालो. कायदे से क्या होता है ना कि इनिशियल सेंटर मास, फिर फाइनल सेंटर मास, फिर दोनों को इक्वेट करो, इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो. मैं करूं सीधे निकाल दो आंसर. कैसे? मास मोमेंट. तो मास मोमेंट क्या होगा ना, इंटरचेंज. इंटरचेंज मतलब ये इधर गया तो ये गया +10 विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड. ध्यान रखना विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड. तो ये गया +10. तो इसका होगा 4 × 10 +40. इसका होगा 80 × -10 तो -80. तो -80 +40 तो यानी -40 हुआ. लेकिन ओवरऑल एक माइनस भी है साथ में तो +40. ये हो गया मास मोमेंट. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ. इसका हो जाएगा 40 × 10 सॉरी 400. हाँ मैं बता रहा हूँ. 40 × 10 इज व्हाट 400 और -80 × 10 इज -800. तो मिला के कितना हो गया -400. ठीक है, -400 अपॉन टोटल मास. तो टोटल मास क्या होगा 400 + 80 + 40 यानी 520. तो यानी आ जाएगा माइनस ऑफ, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, माइनस ऑफ 40 × 10 प्लस 80 × -10 बाय टोटल मास यानी 520. तो ये 400 और ये -800 तो -400 हुआ और माइनस है तो +400. +400 बाई 520 यानी 400 बाई 11. बाकी 4 से तो आई थिंक डिविजिबल हो जाएगा. ये हो जाएगा 10/13 मीटर. तो आंसर हो गया 10/13 मीटर. देखो फटाफट सॉल्व हो. नाउ सोमेश आज की ये आपने जो लिखा है ये कैसे आया ना. देखो इसका थोड़ा लॉजिक समझो. क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर मास एक ही जगह पे रहेगा. तो सेंटर मास एक ही जगह पे रहने का मतलब क्या कि टोटल मास मोमेंट 0 आएगा. ठीक है, टोटल मास मोमेंट 0 आएगा. तो मुझे अगर बोट का अकेला चाहिए तो इन दैट केस बोट का एक तरफ कर लो और बाकियों का दूसरी तरफ कर लो. तो बोट का अगर मान लो बाकियों से माइनस हो जाए तो इन दैट केस टोटल मास मोमेंट 0 हो जाएगा. तो मैंने वही लॉजिक यूज किया कि बोट को छोड़ के विथ रेस्पेक्ट टू द बोट आई मीन मास मोमेंट्स निकाल ऑफ द मूवमेंट्स. बोट को छोड़ के, लेकिन ध्यान रखना न्यूमरेटर में बोट को छोड़ के आए तभी तो बोट का मूवमेंट आएगा, है ना. तो बोट को छोड़ के बाकियों का मूवमेंट निकाल लो, मास मूवमेंट, और टोटल मास कर लो तो अकेले बोट का जो शिफ्ट होगा वो आ जाएगा. दैट इज द आइडिया. एक्चुअल आइडिया क्या है कि टोटल मास मूवमेंट हैज टू बी 0. तो वो तो ऑब्वियसली इधर माइनस है. तो अगर तुम ये बोट का हो गया तो अगर इसको इधर लेके आते हो तो दैट केस क्या सबका मास मूवमेंट आ गया. और क्योंकि सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सबका मास मूवमेंट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए. तो अकेले अगर एक सिंगल आइटम का निकालना है जैसे बोट का शिफ्ट या कुछ तो इन दैट केस बाकियों को दूसरी तरफ कर विद माइनस साइन. और यही मैंने किया. तो लॉजिक सही है, कोई ऐसे नहीं कि कोई याद करने के लिए कह रहा हूं मैं. बिल्कुल सही बात है. 10/13 आंसर हैज बीन गिवन बाय अरियंत दास की. आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया. एक्चुअली मोमेंटम तो था ही नहीं. और दूसरी बात पता है कि ये जो बैलून है और जो वेट है इसके वजह से नेट फोर्स 0 है. तभी मैं ये सेंटर मास का कंसेप्ट लगा के इसका आंसर बताया था m × L/m + M. You have to understand what Ariyant is asking. What Ariyant is asking is that now this is for everybody. I mean what Ariyant is asking is that आपने यहाँ पे सेंटर मास का शिफ्टिंग तो लगा दिया लेकिन वो तो तब सॉरी सेंटर मास शिफ्ट नहीं हो सकता है वो लगाया. लेकिन वो तो तब लगता है ना जब नेट फोर्स 0 होता है. यहाँ तो ग्रेविटी है ना. देखो ग्रेविटी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ में एयर का भी बुएंट फोर्स है जिसके वजह से पूरा सिस्टम फ्लोटिंग है. देखो लिखा फ्लोटिंग इन एयर यानी नेट फोर्स क्या हो गया 0. इसलिए ग्रेविटी फोर्स है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. मुझे मतलब है कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो मैं ये कंसेप्ट लगा सकता हूँ. तो नेट फोर्स अगर 0 होगा और अगर इनिशियली सेंटर मास रेस्ट पे है, फिर से सुनो, नेट फोर्स अगर 0 है और अगर इनिशियली सेंटर मास रेस्ट पे है तो यानी वो रेस्ट पे ही रहेगा. इवन इफ सम पार्ट ऑफ द सिस्टम माइट मूव हियर एंड देयर तो वो किसी और के मूवमेंट रिवर्स मूवमेंट से कंपेंसेट होगा. तो ये जो पूरा फ्लोटिंग सिस्टम था इसके वो नेट फोर्स 0 है तो देयरफॉर सेंटर मास फिक्स होगा. अब मंकी अगर ऊपर क्लाइंब करता है तो इन दैट केस वो जो बैलून ऑफ कैपिटल एम मास है वो नीचे क्लाइंब करेंगे या नीचे आएंगे जिससे कि दोनों में कंपेंसेशन हो जाए
और नेट सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। यही कंसेप्ट बोट वाला है। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर बोट का शिफ्टिंग निकालना है तो बोट को एक तरफ कर लो और बाकियों का मास मूवमेंट निकाल दो विद द नेगेटिव साइड, अपॉन टोटल मास कर दो तो देखना शिफ्ट ऑफ बोट आ जाएगा। मैं अगर इससे क्वेश्चन थोड़ा कठिन भी करता हूँ, जैसे सपोज ये बंदा 6 मीटर इस तरफ जाता है, ये बंदा 7 मीटर इस तरफ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने जो 10 लिखा है इसको 6 कर दो और इसको -7 कर दो, तो यानी कोई और भी टाइप का मूवमेंट होता है, जरूरी नहीं कि इंटरचेंज हो जाए, तो भी इन दैट केस मैं इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को टारगेट भी करूंगा और सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, तो दिस यू कैन कंसीडर एज सम काइंड ऑफ अ शॉर्टकट। तो समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला है ये वाला? आई होप यू गॉट द लॉजिक। चलो यस आ गया आंसर। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन। अभी तो भी अब तो और नया कुछ करने का टाइम नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा और डिस्कस करना था, बट कोई बात नहीं। तो लाइक ठीक है ना देव सेज के नाइस शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, सब चीजें क्या है इसमें, बस वो बोर्ड का एक तरफ ले गया, बाकियों का फटाफट आंसर निकाल दिया तो जल्दी हो गया, और कुछ इसमें कोई हाईफाई कुछ नहीं। और देखो शॉर्टकट ना थोड़ा सा एक मार्केट में सेलिंग कमोडिटी हो गया, शॉर्टकट कुछ खास होता नहीं है। थोड़े थोड़े जगह पे 2-3 जगह पे क्या होता है कि माइंड थोड़ा फास्ट काम करता है, बस इतना ही है। अदरवाइज शॉर्टकट और पूरे पेपर में मुश्किल से एक आध क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में लग पाता, तो देयरफॉर कई बार हम लोग शॉर्टकट करके थोड़ा हवा बना लेते हैं, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा खास होता नहीं है, बहुत रेयरली एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, चलो एनीवे that's the end of the day for today, because as I said there is no more time for taking up anything new. I mean, I hope the schedule of the half yearly exams comes up today or by today. I mean, या मैं एक बार एक reminder भी भेज दूंगा, but I'm sure they are working on it. But as of now, as the situation stands, I'm not seeing the exam happening before Monday. तो मुझे लगता नहीं कि इस वीक होगा, और अगर होगा भी तो कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट होगा, मे बी फिजिकल एजुकेशन या हो सकता है इंग्लिश का हो जाए या इवन कंप्यूटर साइंस या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग टॉर्क के ऊपर और डिस्कस करेंगे। टॉर्क इज नॉट ओवर एज येट सर नेक्स्ट क्लास। हाँ जी बेटे। सर इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड फ्रेम से? नहीं, सेंटर मास फिक्स रहेगा ना। ये बोट की बात कर रहे हैं उनकी? सर नहीं, बोट वाले की। बोट वाले, हाँ सर। बोट में देखो क्या हो रहा है, एक वेट ऐड कर रहा है और एक पानी का बो एंड फोर्स, तो दोनों वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए अगर कोई भी बंदा बोट के ऊपर चलता है तो बोट शिफ्ट होने लगे उल्टे डायरेक्शन। तो अगर अकेले बोट का शिफ्ट निकालना है, इन दैट केस बाकियों का मास मूवमेंट दूसरी तरफ ले जाओ और विद माइनस साइन करके टोटल मास से डिवाइड कर दो, तो अकेले बोट का शिफ्टिंग आ जाएगा। ठीक है सर बोट वाले क्वेश्चन में भी सेंटर ऑफ मास फिक्स था ना? बोट का सर बोट जो बलून वाले क्वेश्चन में भी सेंटर ऑफ मास फिक्स था ना? हाँ, बलून वाले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फिक्स था। बैलून का तो शिफ्ट हुआ, मंकी का भी शिफ्ट हुआ, लेकिन सिस्टम का सेंटर मास फिक्स था। क्यों? क्योंकि ये फ्लोटिंग था। फ्लोटिंग का मतलब क्या? वेट और बुओयंट फोर्स ऑफ एयर, ये दोनों मिलकर नेट फोर्स 0 किया था। जहां पे नेट फोर्स 0 है और सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है, उसका सेंटर मास फिक्स रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए, वो भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। ठीक है, तो इस केस में भी हमने सेंटर मास फिक्स करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर विल कंटिन्यू tomorrow and let's see whether the schedule comes up today or not. Okay, चलो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। Thank you, sir. Okay बेटे, thank you and have a good day.